Hey everyone, hope you all are doing well. I'm Jyotsna. I'm here with a new video of video series Materials, Metal and Non-Metals from Class 8 Science. In this video, we will do exercise of this chapter. In previous video, we have covered all the topics of this chapter. Now we will do exercise. Let's start with me. Now start with the question number 1. That is, which of the following can be beaten into thin sheet? Uh, A. Zinc, B. Phosphorus, C. Sulfur, and D. Oxygen. We know it is a property of metals. Metals can be beaten into thin sheets. And here, zinc is a metal, and resting of three, phosphorus, sulfur, and oxygen are non-metals. So, option A is correct. That is zinc. Zinc is zinc can be beaten into thin sheets. Fine. Now, question number 2. Which of the following statement is correct? I will read it one by one for you. A. All metals are ductile. B. All non-metals are ductile. So option B is incorrect. B is incorrect because non-metals ductile नहीं होते. Ductility is a property of metals. So option B is absolutely wrong. C. Generally metals are ductile, and D. Some non-metals are ductiles. तो non-metals तो ductile नहीं होते हैं. So it is also wrong. So option B and D are wrong. And option A and C, this are similarity कि सभी metals ductile होते हैं या generally metals are ductile. तो because exceptions are always there in chemistry कि जो metals हैं कोई कोई metals ductile नहीं होता जैसे कि सोडियम. सोडियम क्या है, वेरी सॉफ्ट है, तो हम उसको थिन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते. डक्टाइल मीन्स होता है कि मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट करना. ठीक है, तो सभी मेटल्स नहीं होते बिकॉज सोडियम इज वेरी सॉफ्ट. So option C is correct. That is, generally metals are ductiles. Now move to next question. That is question number 3. Fill in the blanks. C. A. Phosphorus is very reactive non-metal. जो phosphorus है वो काफी reactive होता है. Next, B. Metals are dash conductor of heat and dash. Metals are, we know metals are good conductor of heat and electricity. C. Iron. Iron is dash reactive than copper. Iron copper से ज़्यादा reactive होता है. तो iron is more reactive than copper. C में आएगा more. We know iron is more reactive than copper. D. Metals react with acid to produce dash gas. मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं. राइट. नाउ move to next question. Question number 4. That is true and false. I'll read it for you one by one. Statement 1. Generally non-metals react with acids. Non-metals react करते हैं acid से. It is false. क्योंकि कोई भी नॉन मेटल एसिड से रिएक्ट नहीं करता है. फॉल्स. नाउ बी. सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल. ट्रू. सोडियम काफी रिएक्टिव मेटल होता है, तभी हम सोडियम को केरोसिन में रखते हैं जिससे कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे. तो इट इज ट्रू, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल. नाउ मूव टू नेक्स्ट. द स्टेटमेंट इज कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन. इट इज फॉल्स बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक. तो जो भी कम रिएक्टिव होगा वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट को displace नहीं कर सकता. That's why copper displaces zinc from zinc sulfate solution is a false statement. Next, coal can be drawn into wires. It is a property of metal कि हम उसको वायर में मेटल को वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं. इट इज अ डक्टिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी. बट जो कोल है, अगर हम कोल को बीट करेंगे तो क्या होगा, वो पीसेस में ब्रेक हो जाएगा. और अगर हम उसे ज्यादा ही हार्डली बीट करेंगे तो क्या होगा, कोल कोल एक पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर, और वो वायर में कन्वर्ट नहीं होगा. सो दिस स्टेटमेंट आल्सो फॉल्स. Now, next, fifth question. Some properties are listed in the following table. Distinguish between metals and non-metals on the basis of these properties. यहाँ पर कुछ metals दिए हैं, मतलब कि metals कुछ properties दी हुई हैं
और यहाँ पर दो कॉलम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, इन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इनको डिस्टिंग्विश करना है। नाउ सी द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज अपीयरेंस। मेटल्स की अपीयरेंस कैसी होती है? दे आर लस्ट्रस, दैट मीन्स शाइनी, एंड नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, क्योंकि कुछ मेटल्स होते हैं जो शाइनी होते हैं, सॉरी नॉन मेटल्स होते हैं। हार्डनेस, metals are hard and non-metals are soft. Malleability, metals are malleable and non-metals are non-malleable. क्योंकि malleability एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की, जिससे कि उनको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट नॉन मेटल्स आर नॉन malleable. नेक्स्ट डक्टिलिटी, metals are ductiles and non-metals are non-ductile. Heat conduction, metals are good conductor of heat and non-metals are poor conductor of heat. Last, sixth property, conduction of electricity. Metals are good conductor of electricity, but non-metals are poor conductor of electricity. Is it clear? Now move to next question, that is question number 6. Give reason for the following. A. Aluminium foils are used to wrap food items. Aluminium foils को food items wrap करने के लिए use किया जा सकता है. There are two reasons for this answer, for this question. See, aluminium does not react with food. Aluminium food से react नहीं करता, so it is safe to keep food items in the aluminium foil. तो क्या होता है कि अगर aluminium food item से react करे तो क्या होगा, वो food can be contaminate, food can be spoiled. So इसलिए when because aluminium does not react with food items, so it is safe to keep the food in the foil. Next, second point है इसका, aluminium is malleable, that can be beaten into thin sheet. That is why aluminium foil are made of it. Aluminium की एक प्रॉपर्टी है malleability, जिससे कि उनको thin sheet में कन्वर्ट किया जा सकता है और इसकी aluminium foil प्रिपेयर हो जाती है. Clear? Now move to next question. B. Immersion rods for heating liquids are made up of metallic substances. जो इमर्जन रॉड्स होती हैं लिक्विड को हीट करने के काम आती हैं, वो मेटालिक सब्सटेंस की बनी होती है. कोई भी अब जो मेटल है, देखिए, कोई भी अगर उसको हीट मतलब गर्म करना है किसी भी लिक्विड को, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि वो जो हम सब्सटेंस यूज कर रहे हैं वो एबल होना चाहिए टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तभी तो वो दूसरे मेटल वाटर को या किसी लिक्विड को गर्म कर पाएगा. इमर्जन रॉड्स आर यूज हीटिंग फॉर हीटिंग वाटर, so it will be heat water only when they are able to conduct heat. वो तभी एबल होंगे अगर जब वो हीट को कंडक्ट कर सकते होंगे, because metals are good conductor of heat and electricity. That is why metallic substances are used in immersion rods. जो इमर्जन रोड्स हैं उसमें मेटालिक सब्सटेंस यूज होते हैं, क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई दे आर एबल टू हीट द वाटर. फाइन. नाउ क्वेश्चन नंबर सी ऑफ सिक्स्थ क्वेश्चन. कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. कॉपर जो है वो जिंक को सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाता, बिकॉज कॉपर इज less reactive than zinc, and we know less reactive metals are not able to displace more reactive metals. See how? Because copper is less reactive than zinc, it cannot displace zinc from salt solution. See the reaction, copper plus zinc sulfate, हमने कॉपर डाला उसमें जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव. कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, एंड लेस रिएक्टिव metals are not able to displace a more reactive metal. Next, D part of sixth question. Sodium and potassium are stored in kerosene. See the answer. Sodium and potassium are highly reactive metals which are readily reacts with atmospheric oxygen to catch fire.
सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। क्या होता है, जो सोडियम एंड पोटेशियम है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, विग्रस हैं। तो क्या करते हैं, जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं और क्या करते हैं, फायर कैच कर लेते हैं। तो इस चीज से हमें उस सेव करने के लिए, जिससे कि वो फायर को कैच ना कर सके, हम इन्हें केरोसिन में स्टोर करते हैं। और केरोसिन में कहीं भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, दैट्स व्हाई वी पुट सोडियम एंड पोटेशियम इन केरोसिन। क्लियर? Now move to next question. Question number 7. Can you store lemon pickle in an aluminium utensil? Explain. Answer. Lemon pickle consists of acids. Even lemon itself contains citric acid. Lemon pickle में acids होते हैं और lemon तो खुद ही citric acid है। तो which react with aluminium metal to produce salt and hydrogen। तो ये क्या करता है, जो एसिड है वो एल्यूमिनियम से रिएक्ट कर जाता है, मेटल से रिएक्ट कर देता है और क्या करता है, सॉल्ट प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, दैट इज नॉट सेफ फॉर पिकल एंड इट विल बी कंटामिनेट। हेंस पिकल इज नॉट स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल, दैट्स व्हाई जो पिकल्स हैं हम उन्हें एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स में कीप नहीं करते, स्टोर नहीं करते हैं। Now move to next question, question number 8, that is matching. See, match the substances given in column A with their uses in column B. इधर कॉलम ए में दिए हैं मेटल्स और कॉलम बी में दिए हैं हमें उनके यूजेस, तो हमें उन्हें मैच करना है। सी, फर्स्ट इज गोल्ड, गोल्ड इज यूज्ड टू मेकिंग ज्वेलरी, तो इट विल बी गो विद डी। Next, iron. Iron is used in machinery. Go with E. Aluminium. Aluminium are used in wrapping food. अभी हमने ऊपर भी किया था ये. Now next fourth, carbon. Carbon are used in fuel. Copper. Copper are used in electric wire because they are good conductor of electricity. That's why copper is used in electric wires. Mercury. Mercury will go with A, thermometer. जो mercury है वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, इट इज एक्सेप्शन, एंड उसे थर्मामीटर में यूज किया जाता है टू मेजर द टेम्परेचर। क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन A, dilute sulfuric acid is poured on a copper plate। अगर हम dilute sulfuric acid को copper plate पर pour करेंगे तो what will happen? No reaction occur, कोई भी reaction नहीं होगी। When dilute sulfuric acid, that is dilute H2SO4 is poured on a copper plate। Fine, यहाँ तक आंसर सफिशिएंट है, but I am explaining more. However, when concentrated sulfuric acid, that is concentrated H2SO4 is poured on a copper plate, hydrogen gas evolved along with the formation of a blue colored copper sulfate crystal। लेकिन अगर हम, ठीक है, the chemical reaction for the reaction between concentrated sulfuric acid and copper is copper plus concentrated H2SO4 gives us copper sulfate plus hydrogen gas. Fine. Now move to next part. B. Iron nails are placed in copper sulfate solution। अगर हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में पुट करेंगे, प्लेस करेंगे, तो what will happen? We know iron is more reactive than copper. See, iron being more reactive displays, iron is more reactive, इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। ये क्या करेगा, कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर देगा। इन दिस रिएक्शन द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स, जो इसका ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का वो फेड हो जाएगा, एंड देयर इज द दिस डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन द आयरन नेल, और कॉपर जो है वो आयरन नेल पर डिपोजिट हो जाएगा। सी रिएक्शन आयरन and it is a blue color solution of copper sulfate. When we put iron in copper sulfate, then what will happen? जो blue color है इसका copper sulfate solution का वो fade away हो जाएगा and we will get copper on iron nail। ठीक है, fine। Now next question, question number 10. Saloni took a piece of burning charcoal
and collected the gas evolved in a test tube. अब उसने क्या किया, जो चारकोल को बर्न किया और उसमें से जो गैस इवॉल्व हुई उसको एक टेस्ट ट्यूब में रख लिया. सी हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस. अब उसे कैसे पता चलेगा कि जो गैस का नेचर है, जो इवॉल्व हुई है गैस, वो एसिडिक है या बेसिक है. In a test tube containing gas, add a few drops of water. जिस टेस्ट ट्यूब में गैस है उसमें हम few drops of water डालेंगे. Now cover the test tube and shake it well. हम टेस्ट ट्यूब को कवर करेंगे और उसको अच्छे से शेक करेंगे. After shaking, test the solution with blue litmus. अब हम उसे ब्लू लिटमस से टेस्ट करेंगे. वी नो कि हमें जब कोई सॉल्यूशन को टेस्ट करना होता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है बाय इन नेचर, तो वी यूज लिटमस पेपर. हियर वी विल टेक ब्लू लिटमस पेपर. इफ इट विल चेंज फ्रॉम ब्लू टू रेड, अगर ये ब्लू से रेड हो जाएगा लिटमस, thus द गैस इज एसिडिक इन नेचर. वी विल कम टू नो कि जो गैस इवॉल्व हुई है वो एसिडिक इन नेचर है. कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन कहाँ से आया, जो सलोनी ने पीस ऑफ चारकोल बर्न किया था उसमें से वो कार्बन आया, बिकॉज चारकोल जो है वो कंटेन करता है कार्बन को. एंड जब ये बर्न होगा दैट मीन्स देयर इज अ ऑक्सीजन. फिर ये ऑक्सीजन हो वहां पे प्रेजेंट है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा एंड वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ मिक्स CO2 विद वाटर. अब हमने क्या किया था, टेस्ट ट्यूब में जो गैस थी इवॉल्व हुई थी वो CO2 थी, उसमें हमने क्या किया, H2O डाला, पानी डाला, तो वी विल गेट कार्बोनिक. कार्बन डाइऑक्साइड में हमने वाटर डाला, वी विल गेट कार्बोनिक एसिड. दैट मीन ब्लू लिटमस टर्न रेड, एसिडिक इन नेचर. ये जो होगा वो एसिडिक इन नेचर होगा. क्लियर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. One day, Rita went to a jewelry shop with her mother. Her mother gave an old gold jewelry to the goldsmith to polish. उसकी मदर ने क्या किया, गोल्डस्मिथ को अपनी ओल्ड ज्वेलरी दी पॉलिश के लिए. नेक्स्ट डे when they bought the jewelry back, they found that there was a slight loss in its weight. Can you suggest a reason for the loss in weight? कि उसमें जो लॉस हुआ वेट का उसका रीजन आप बता सकते हैं. सी हाउ इट हैपन्स. इन ऑर्डर टू पॉलिश द गोल्ड ज्वेलरी, इट इज टू बी डिप्ड इन अ लिक्विड कॉल्ड एक्वारिजिया. जब गोल्ड ज्वेलरी को पॉलिश करना होता है तो हम उस ज्वेलरी को एक्वारिजिया में डिप करते हैं. एक्वारिजिया के सॉल्यूशन में. एक्वारिजिया क्या होता है, एक रॉयल वाटर है जो कि मिक्सचर होता है HCl का और HNO3 का. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है. ऑन गेटिंग इमर्ज इन एक्वारिजिया, द आउटर लेयर ऑफ गोल्ड डिजोल्व. जो जैसे ही हम एक्वारिजिया में गोल्ड को डिजोल्व करेंगे, जो उसकी आउटर लेयर है वो क्या हो जाएगी, उस सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाएगी. एंड इनर शाइनी लेयर अपीयर्स. जो इनर लेयर है वो अपीयर होगी. ऑफ कोर्स वो शाइनी होगी बिकॉज वो कभी पहले एक्सपोज नहीं हुई है. दैट्स व्हाई it will be shiny. The dissolving of the layer causes a reduction in the weight of jewelry. जो अपर लेयर डिसॉल्व हुई है एक्वारिजिया के सॉल्यूशन में, वो क्या करे, वो जो है वो उसका वेट रिड्यूस होने का रीजन है. क्योंकि जो अपर लेयर रिड्यूस डिसॉल्व हो गई, यानी कि उस पे गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर से जो लेयर हटी है वो उसका वेट लॉस का रीजन है. और ये जो वेट लॉस होता है वो लिटिल बिट होता है. जो एक्वारिजिया है वो किस चीज का मिक्सचर है, HCl एंड HNO3. दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर है. सो वी हैव डन द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. So we have completed all the exercises of this chapter. If you have any queries, please write in the comment box. I will definitely answer all your queries. I will meet you soon in a next video with a new chapter. Till then, bye bye, take care.